Hello student, now we start exercise 13.6. In this exercise we will study about the volume of a right circular cylinder. Okay, right circular cylinder, as you find the surface area, total surface area, curved surface area of a cylinder. Now we find the volume of a cylinder. Volume of a cylinder means in a cylinder how many quantity of a material can be filled in the cylinder. Okay, कि हिंदी में बताता हूँ, देखो साफ साफ, किसी भी सिलेंडर में कितना मटेरियल, कितनी मटेरियल की क्वांटिटी, उसके अंदर कितनी क्वांटिटी वहाँ पे भरी जा सकती है, उसको क्या बोलते हैं, उसका वॉल्यूम। जैसे आपका रूम है, आपका एक रूम है, उसके अंदर कितनी एयर भरी हुई है वो निकालना क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है कि भाई जितना उस रूम का वॉल्यूम होगा उतनी उसके अंदर एयर भरी हुई होगी। जैसे आपके पास एक गिलास है, गिलास का फॉर्म क्या होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है। नॉर्मली किसी भी गिलास की फॉर्म क्या होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है। तो उस गिलास के अंदर हम कितना वाटर डाल सकते हैं, कितना मिल्क डाल सकते हैं, वो मेजर करना आपका क्या होता है, वॉल्यूम। क्योंकि जितना उस गिलास का वॉल्यूम होगा उतना ही आपके अंदर, उसके अंदर वाटर आ सकता है, मिल्क आ सकता है, जो भी है वो आ सकता है। ओके, द वॉल्यूम इज द कैपेसिटी ऑफ ए shape that it can hold in it. Okay, now start. The volume of a right circular cylinder is, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला पढ़ते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला देखिए, ये है आपका फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ओके, पाई आर की पावर 2 और मल्टीप्लाई एच। ये आपका सिलेंडर है, आर आपको पता है क्या होगी, रेडियस, और ये क्या होगा, आपकी हाइट होगी। ओके, ये क्या होगी, सिलेंडर की हाइट एच। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इफ radius of the base is 7 cm and height is 1.5 decimeter. Here the base is in centimeter and height is in decimeter. So we convert decimeter into centimeter. Okay, and then we apply the formula of volume of a right circular cylinder and get the volume of a cylinder. Here the volume of a cylinder formula. Now the question number first का first part जो है क्या है, radius of a cylinder is equal to 7 centimeter, height is equal to 1.5 decimeter. Now we convert decimeter into centimeter by multiplying 10. 1.5 multiply 10 is equal to 15 centimeter. Okay, now apply volume of a cylinder is equal to pi r square h. 22 by 7 is the value of pi and radius of the cylinder is 7 and the height of the cylinder is 15 centimeter. Okay, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, 7 से कैंसिल होगा 49 एंड बाय मल्टीप्लाइंग 22, 7 and 15 we get 2310 centimeter cube is the volume of a cylinder. Okay, now the question number second part, area of the base. आपको एरिया गिवन है 154 centimeter square and height is 1.5 centimeter. Okay, area given 154 centimeter square and height is 1.5 centimeter square, and we have to find the volume of a right circular cylinder. Okay, so how can we do it? By the area. Firstly, by the area we can find the radius of the base of a cylinder, and then by applying the volume of a cylinder we get the volume of a cylinder. Okay, here the question number second part, area of a base 154 centimeter square, height is 1.5 centimeter. Area of a base is equal to pi r square. Formula for area of base is equal to pi r square is equal to 154. Okay, by putting the value of pi, 22 by 7 multiply r square as it is, because we have to find the radius, so r square taken as it is 154 equal to 154. R square 22 and 22 by 7 comes to another side, becomes 7 by 22, and we can cancel out 22 by 154, we get the 7 and the 7 multiply 7 is equal to 49. So r square is equal to 49 and r is equal to square root of 49 is equal to 7. Radius of the base of the cylinder is equal to 7. Okay, now we have to find the volume. To apply volume of cylinder, pi r square h
value of pi is 22 by 7, and the radius we have find that 7 square, and the height is 1.5 centimeter. Okay, now the solve 22 by 7 multiply 49 multiply 1.5, 7 1 ja 7, 7 7 ja 49, 22 multiply 7 multiply 1.5. By multiplying the 22, 7 and 1.5, we get the answer 231.0 centimeter cube. Okay, centimeter cube is the unit of the volume. Okay, so we have find that 231.0 centimeter cube is the volume of a cylinder. Okay, now the third part is circumference of base is equal to 1.32 meter, and the height of the cylinder is 25 centimeter is given. Okay, we have to find the volume of the right circular cylinder. From the circumference of the base, we have to find the radius of the base of a cylinder, and then we apply the formula of volume of a cylinder and find the volume. Now see this question number, third part. Circumference of a base is equal to 1.32 meter, height is 25 centimeter. Now centimeter is converted into meter by 25 by 100. Circumference of the base is equal to 2 pi r, formula is 2 pi r, and the given 1.32. Okay, here putting the value of pi, 2 multiply 22 by 7 multiply r equal to 1.32, r is equal to 1.32 multiply 7 by 2 multiply 2, and by solving the all the question we get the 2 by 100. Radius is the 2 by 100. Okay, radius is 2 by 100. Now the volume of a cylinder is equal to pi r square h. Value of pi is 22 by 7, r square, it means 21 by 100 square multiply height is 25 by 100. Okay, now square 21 by 100, 21 by 100 written as 2 times, and 22 by 7 and 25 by 100. Okay, now solve the all this problem, we get the 0.3465 meter cube is the volume of a cylinder. Okay, 0.34650 meter cube is the volume of a cylinder. Okay, now the question number second is, how many cube meter of earth must be dug out to sink a well 16 meter in depth and 7 meter in diameter. Here the well is given and the shape of the well is like a cylinder. Okay, जो आपका वेल होता है उसकी शेप कैसी होती है, सिलेंडर के टाइप की होती है. देखा वेल, कुआं देखा आपने, तो कुएं की शेप कैसी होती है, सिलेंडर के टाइप की होती है. हियर द डायमीटर ऑफ द वेल इज गिवन एंड डेप्थ इज गिवन, और जो डेप्थ है वो क्या कहलाएगी, आपकी सिलेंडर की हाइट कहलाएगी. ओके, तो डेप्थ भी दे रखी है और डायमीटर भी दे रखा है. फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर बाय द diameter and then apply the formula of volume of a cylinder. Okay, look at this, depth of well is equal to 16 meter and the diameter of the well 7 meter, radius of the well is equal to 7 by 2 meter. Okay, now the volume of the well pi r square h, 22 by 7, 7 by 2 का whole square multiply 16, and 7 by 2 written as 2 times because there is square of 7 by 2, and 22 by 7 multiply 7 by 2 multiply 7 by 2 multiply 16. By cancelling 7 by 7, 2 by 11, यहाँ पे 77 multiply 8 is equal to 616 meter cube is the volume of the well. Well का volume आ गया यहाँ पे. Okay. Now the question number 3 is, a water tank is cylindrical in shape and the diameter of its base is 28 meter. If it is 7 meter deep, how many kiloliter of water can it hold? Okay, वाटर टैंक जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल शेप में है, डायमीटर इज गिवन एंड द डीप ऑफ द डेप्थ ऑफ द सिलेंडर इज गिवन. ओके, एंड वी हैव टू फाइंड द हाउ मैनी किलोलीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक. ओके, here the question number 3 is, this diameter of the water tank 28 meter, radius of the water tank is equal to 28 by 2 equal to 14 meter. Okay, depth of the water tank is equal to 7 meter as given in the question. Now we have to find the volume of the tank. Pi r square h, 22 by 7, 14 square multiply 7, 22 by 7 multiply 14 multiply 14 multiply 7,
44 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 4312 मीटर क्यूब। ओके, कैलकुलेशन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि आप 8th क्लास में हो चुके हो, इसलिए कैलकुलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ओके, तो 4312 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 4312,000 लीटर। ओके, ये मीटर क्यूब में था, पहले हमने इसको लीटर में कन्वर्ट किया। लीटर में कैसे होता है, 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के इक्वल होता है। ओके, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, और 4312 मीटर क्यूब था तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो आपका आंसर है वो आपको किस में मांगा गया था, किलो लीटर में मांगा था। योर आंसर हैज़ टू बी इन किलोमीटर, किलो लीटर। तो वी हैव टू कन्वर्ट लीटर इनटू किलो लीटर बाय डिवाइडिंग 1000। नाउ बाय कैंसल आउट 4312 इज द किलो लीटर। ठीक है, तो आंसर इज 4312 किलो लीटर इज द कैपेसिटी ऑफ दिस सिलेंडर। ओके, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज read the statement. The radius of the base of a cylindrical oil can is 4 meter. Find its height if it can contain 1408 kiloliter of oil. ठीक है, ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट को। रेडियस गिवन है सिलेंडर, रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज गिवन एंड द हाइट वी हैव टू फाइंड एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज गिवन। ठीक है, but the volume is given in kiloliter and we have to convert it into meter. Okay, now the question number 4. Question number 4 is, look at this. Radius of the base of the cylinder oil can is equal to 4 meter and the volume of the oil can is equal to 1.08 kiloliter. So we have to convert kiloliter into meter cube, multiply by 1000 and divide by 1000. We get in meter cube. Okay, so 1408 is the meter cube. Now the volume of oil can is equal to pi r square h. फॉर्मूला अप्लाई किया सिलेंडर के वॉल्यूम का, 1408 इक्वल दे रखा है, वॉल्यूम आपको गिवन है। ओके, 22/7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई एच जो है आपको हाइट फाइंड करनी है यहाँ पे, इज इक्वल टू 1408. नाउ एच can be here and the all of the number 22/7 4 multiply 4 comes other side and equal to 1408 multiply 7 divided by 22 multiply 4 multiply 4. ओके, उन सभी को उधर लेके चले गए और फिर इसको जो है सोल्व कर दिया हमने। आप सोल्व कर सकते हो, अपने तरीके से सोल्व कर सकते हो। आंसर कितना आ गया, 28 मीटर। देन द हाइट ऑफ द ऑयल कैन इज इक्वल टू 28 मीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ओके, आ गया समझ में। बस इसमें क्या करना था, आपको किलो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना था और आपको फॉर्मूला अप्लाई करना था वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर इन द रेशो 5:7। रेडियस एंड सिलेंडर की जो हाइट है उन दोनों का रेशो गिवन है and its volume is 550 centimeter cube. Find its radius. We have to find the radius of the cylinder. Okay, and volume is given 550 centimeter cube. वॉल्यूम दे रखा है और रेडियस और हाइट की रेशो गिवन है, तो आपको क्या फाइंड करनी है, आपको उस सिलेंडर की रेडियस फाइंड करनी है। ओके, here the question number 5 is let the radius of cylinder is equal to 5x. हमने लेट कर लिया क्योंकि आपको रेशो दे रखे थे 5:7, तो उसको लेट कर लिया कि भाई जो रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू 5x एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 7x. ओके, नाउ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज गिवन एज pi r square h इक्वल टू 550 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज गिवन 550 सेंटीमीटर क्यूब, सो वी कैन पुट pi r square h equal to 550 centimeter cube. Okay, now the value of pi is equal to 22/7 multiply 5x multiply 5x multiply 7x. अब ये 5x जो है मैंने 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ रेडियस का स्केयर है। अब आप 5x का स्केयर करोगे, इसका मतलब आप उसको 2 बार लिख लो और 7x. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 बार लिख लो या वापस उसका स्केयर कर दो, एक ही बात है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की और 7 की, तीनों की मल्टीप्लाई की तो 175
एक्स क्यूब आ गया यहाँ पे, ओके। 22/7 मल्टीप्लाई 175 एक्स क्यूब इक्वल टू 550। नाउ द एक्स क्यूब इज इक्वल टू 550 मल्टीप्लाई 7/22 मल्टीप्लाई 175, ओके। अब बाय कैंसल आउट वी गेट द एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। एक्स क्यूब कितना आ गया 1, और जब 1 का क्यूब रूट निकालेंगे, क्योंकि एक्स निकालने के लिए हमें 1 का क्यूब रूट लेना पड़ेगा, तो 1 का क्यूब रूट कितना आएगा 1 ही आएगा। 1 का क्यूब रूट कितना होता है 1 ही होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई है। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 5x एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 7x। नाउ हियर वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ x एंड वी गेट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब हम जो x की वैल्यू निकाली थी उसको यहाँ पे पुट कर देंगे और अपनी जो है रेडियस फाइंड कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड 7x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओके। तो उसने सिर्फ आपसे रेडियस पूछी थी, लेकिन हमने दोनों निकाल दी है, रेडियस भी निकाल दी है और हाइट भी निकाल दी है, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है निकालने में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। देखो, द थिकनेस ऑफ ए होलो मेटालिक सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर। होलो मेटालिक सिलेंडर कैसा होता है, देखो जैसे आपके पास ऐसे दे रखा है, देखो समझो इस क्वेश्चन को। देखो जैसे आपके पास ये है एक होलो सिलेंडर है, पेज को ऐसे फोल्ड करके मैंने एक सिलेंडर बना दिया। देखो ये आपका सिलेंडर है, ठीक है। ये सिलेंडर है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये सिलेंडर है आपका, ये सिलेंडर है आपका, ओके। तो ये होलो है, देखो अंदर से खाली है, अंदर से खाली है ये, और दोनों तरफ से खाली है, तो ये होलो है। इसको क्या बोलते हैं होलो सिलेंडर, ठीक है। तो ऐसे सिलेंडर को, जैसे पाइप होता है आपके घरों में पानी के लिए पाइप होते हैं, और भी पाइप वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं होलो सिलेंडर होते हैं, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, इस होलो सिलेंडर की थिकनेस दे रखी है, ये जो कितना मोटा है ये दे रखा है यहाँ से, एंड इट इज 35 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो इसकी लंबाई है ये गिवन है आपको 35 सेंटीमीटर, ओके। ये लंबाई दे रखी है। इस इनर रेडियस, इनर जो रेडियस है अंदर की रेडियस, अंदर का जो सेंटर होगा, ये जो अंदर की रेडियस है ये दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर, ओके। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मेटालिक रिक्वायर्ड टू मेक द सिलेंडर एज्यूमिंग इट इज इन ओपन एट आइदर एंड, ठीक है। वो खुला हुआ है दोनों तरफ से, तो आपको उस मेटालिक सीट का वॉल्यूम फाइंड करना है, कितना मेटालिक सीट उसके अंदर यूज हुआ है, ओके। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो देखिए कुछ डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा आपका, ये डायग्राम है आपका। देखो यहाँ पे ये एक पाइप है, इसकी ये अंदर से खाली है, तो यहाँ पे आपके 2 सिलेंडर दिखाई देंगे, एक बड़े वाला सिलेंडर और एक छोटे वाला सिलेंडर। 2 सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं, एक तो बड़े वाला सिलेंडर है और एक छोटे वाला सिलेंडर है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे और फिर छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। तो वहाँ से आपके जो आपकी मेटालिक मटेरियल है जिससे वो बना हुआ है उसका वॉल्यूम आ जाएगा, ओके। तो क्या दे रखा, देखो थिकनेस ऑफ द सिलेंडर इज 2 मीटर, थिकनेस ऑफ द सिलेंडर इज 2 मीटर एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 35 सेंटीमीटर, ओके। इनर रेडियस दे रखी है 12 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सभी चीज़ें हमें दे रखी है। नेक्स्ट है आउटर रेडियस ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की जो बाहर की रेडियस है वो कैसे आ जाएगी, देखो यहाँ पे ये सेंटर है इसका, यहाँ से ये इनर रेडियस है इसकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसकी इनर रेडियस है 12, और ये जो थिकनेस है ये कितनी दे रखी है 2 मीटर दे रखी है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 12 में और 2 को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 + 2 = 14 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ जाएगी, आपकी रेडियस आ जाएगी, आउटर रेडियस, बाहर वाले सिलेंडर की रेडियस आ जाएगी यहाँ पे, ओके। देन द वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर πr² 22/7 मल्टीप्लाई, इनर सिलेंडर की वॉल्यूम निकाल रहे तो इनर सिलेंडर की रेडियस यूज करेंगे, ठीक है। 12 × 12 और इक्वल मल्टीप्लाई 35, सोल्व करके आंसर आ जाएगा 15840 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। नाउ द वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर इज इक्वल टू πr²h। अब आउटर सिलेंडर है तो रेडियस हम आउटर वाली यूज करेंगे, 14 × 14 × 35,
सोल्व करके आंसर आ जाएगा आपका 21560 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नाउ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो आपका मेटालिक सीट लगी हुई है उसका वॉल्यूम कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा उस कितनी सीट लगी हुई है उसका वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।